I now tell about the Rowlatt Act. This is the a paragraph for the Rowlatt Act, and there is more about the Rowlatt Act. Why the Rowlatt Act comes in India? Do you know? If you know, then you have to more knowledge about this conspiracy. Okay, so let's go for it. The Rowlatt Act 1919 was a strict law passed by the British government in March 1919 based on the report of the Rowlatt Committee led by Justice Sidney Rowlatt. It extended the emergency power of the Defence of India Act 1915 even the World War I had ended. The act allowed government officials to arrest individuals without trial, which they could use to prove their guilt. The act inbuilt government authorities to perform secret trials without juries present. The act restricted the right to free speech and assembly activities. The Indian population protested against it and called it the Black Act because of its severe regulations, which resulted in public demonstrations across the country. The Rowlatt Act of 1919 is a topic relevant to the UPSC and more exams like CTET, BPSC, TRE 4.0, who is upcoming soon. Okay, next about the Rowlatt Act. What is the Rowlatt Act? The Rowlatt Act, officially called the Anarchical and Revolutionary Crimes Act of 1919, was a harsh law that encouraged people across India. It united millions of Indians from different religions, castes, and classes against British rule. In response, Mahatma Gandhi launched the Rowlatt Satyagraha in 1919, which became the first major nationwide use of nonviolent civil disobedience. The Rowlatt Act of 1919 was passed by the Imperial Legislative Council to counter the militant nationalist upsurge in India. The act allowed the British government to jail any person suspected of terrorist activities without trial, which is the primary reason why it was resented across the country. However, the British responded with severe repression. The most tragic incident was the Jallianwala Bagh massacre, which caused the movement to reach its peak and becomes a major turning point in India's freedom struggle. Know about the act. Here is some. Why was the Rowlatt Act called Black Law? The Rowlatt Act is also known as the Black Act or Black Law. Where was we? Here. The Rowlatt Act is also known as the Black Act or Black Law. It earned this name because of its deeply oppressive provisions that stripped Indians of basic legal rights. The Rowlatt Act was called Black Law for the following reasons. It allowed the government to detain any person without trial for up to 2 years. मतलब 2 साल के लिए जेल हो सकती थी. किसी भी पर्सन को पकड़ लो, ना वकील ना दलील और कोई चीज़ नहीं, कोई एविडेंस नहीं, और उसको क्या कर सकता था, अरेस्ट कर सकती थी. कौन? रौलट एक्ट का नियम के अनुसार जो उसकी पुलिस आर्मी थी, वो सिपाही, मतलब सिपाही. फॉर अप टू 2 years इट gave ब्रिटिश authorities power to try suspects in secret tribunals. It allowed the government to censure the press and restrict public gatherings. कहा जाता है कि उस समय में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और कोई भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकती है. पब्लिक गैदरिंग्स. इट प्रोवाइडेड टू राइट ऑफ अपील, नो राइट टू नो द चेंजेस एंड नो राइट टू लीगल डिफेंस. कहता है कि इस एक्ट के अनुसार कोई भी आदमी ना वकील कर सकता था, ना अपील कर सकता था, ना ही उसे कोई अधिकार दिया गया था कि इस लॉ के विरुद्ध जो उसको अरेस्ट किया गया है उसके बाद वो कोई कार्रवाई करवा सके. इट वॉज वाइडली सीन एज डायरेक्ट अटैक ऑन द सिविल लिबर्टीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स. ओके, ये डायरेक्ट अटैक था इंडिया के सिविलियंस पर कि जिसे चाहे जब चाहे अंग्रेज क्या कर सकता था, नज़रबंद कर सकता था.
तो एक तरह से देखें तो ये सिविल लिबर्टीज के लॉ के खिलाफ था। बाल गंगाधर तिलक was among the first prominent leader to call the Rowlatt Act a black act। बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे आदमी थे जिन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया और उसने इस कानून को ब्लैक एक्ट यानी कि काला कानून कहा। इंडियन मेंबर्स ऑफ द इंफीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल यूनिवर्सली opposed it, but the British majority overruled them and passed the law। यानी कि जो सिविलियंस ऑफ इंडिया थी, यानी कि इंडिया की जो जनता थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया। ठीक है, कपड़ा जला करके, यूनिवर्सिटीज़ को बंद करके और कई जगह पे प्रदर्शन करके, ठीक है, पीसफुल प्रदर्शन करके, जैसा कि गांधी जी ने क्या किया था, रॉलेट सत्याग्रह वायलेंस किया था। तो इस वायलेंस के कारण बहुत सारे लोग जमा हुए रॉलेट के खिलाफ और उन्होंने क्या किया था, इसका शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्टेड किया था। और इसी बीच में बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस एक्ट को क्या कहा था, ब्लैक एक्ट कहा था। ठीक है, अब नाउ अबाउट मोर बैकग्राउंड ऑफ रॉलेट एक्ट एंड रॉलेट कमीशन। द रॉलेट कमीशन वॉज सेट अप इन 1917 बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू इन्वेस्टिगेट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़। कहा कि 1917 में रॉलेट कमीशन को भारत में लाया गया। ठीक है, पास तो हुआ 1919 में, 1919 में, लेकिन लाया गया 1917 में। इसका बैठक हुआ और इसलिए बैठक हुआ क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंडिया में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे वो बढ़ रही थी। तो इसके एक्टिविटी को, यानी कि राष्ट्रवादी एक्टिविटी को दबाने के लिए, कुचलने के लिए यह कानून को पास करना जरूरी था बाय द थ्रू ऑफ इंग्लिश। का था हेडेड बाय जस्टिस सिडनी रॉलेट। और ये जो है किसके थ्रू पास किया गया था, किसके प्रस्ताव से पास किया गया था, जस्टिस सिडनी रॉलेट के थ्रू। इट रिकमेंडेड एक्सटेंडिंग इमरजेंसी पावर टू कर्ब पॉलिटिकल अनरेस्ट। इस एक्ट के अनुसार कोई भी जो क्रांतिकारी अगर एक्टिव था रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में, तो उसको तुरंत वो पकड़ सकता था। लीडिंग टू द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 विच अलाउड डेटोनेशन विदाउट ट्रायल एंड ट्राइगरेट वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अक्रॉस इंडिया। यानी कि इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को डिटेंशन में डाल सकता था, जेल में डाल सकता था बिना ट्रायल का, बिना मुकदमा का। द रॉलेट कमीशन वॉज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1918 सर सिडनी रॉलेट। जैसा कि इस पेज में लिखा हुआ है, इस पेज के थ्रू बताया गया कि सिडनी रॉलेट के द्वारा 1918 में इस रॉलेट एक्ट को पास किया गया था। द ब्रिटिश जज हेडेड द कमिटी। अदर कमिटी मेंबर्स वेयर JDP होज, बेसिल एस्कॉट, वेरने लॉवेट, PC मीठर एंड CV कुमार स्वामी शास्त्री। तो ये सभी रॉलेट एक्ट के मेंबर थे जिसके अंडर में इस लॉ को क्या किया गया था, बनाया गया था, इस कमीशन को लाया गया था। और इसके हेड लीडर कौन थे, सर सिडनी रॉलेट, जो कि एक ब्रिटिश जज थे। ठीक है, इन्वेस्टिगेट द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन इंडिया एंड द इंटरमेंट पॉलिसी। द रॉलेट कमिटी recommended that the Imperial Legislative Council deport or imprison the revolutions for 2 years without trial। इस जो रिकमेंडेड, यह जो प्रस्ताव लाया गया था, यह जो एक्ट लाया गया था, इसको इंफीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल दिल्ली के द्वारा पास किया गया था, जिसमें ये सभी लोग, जिसका मैंने नाम लिया था, ऊपर में ब्लैक शब्दों में लिखा हुआ है, ब्लैक लेटर्स में लिखा हुआ है, जैसे JDP होज, बेसिल स्कॉट, वेनरी लॉयड, PC मीठर एंड CV कुमार स्वामी शास्त्री। ये सभी लोग इसी बैठक में थे और इसके बाद इस लॉ को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, जो नेशनलिस्ट थे इंडिया के, उसको पकड़ने के लिए बिना ट्रायल के। और इस लॉ को इतना स्ट्रिक्ट किया गया था कि बिना ट्रायल के उसको पकड़ा जा सकता था, उसको डिटोनेशन सेंटर में बंद किया जा सकता था और उसको 2 साल तक रखा जा सकता था। After this, what was the Rowlatt Act purpose? The Rowlatt Act purpose was rooted in British fear of a post-World War I nationalist uprising during World War I 1914 to 1918. The British had used the Defence of Indian Act 1915 to suppress political dissent through emergency wartime powers. As the war ended, the British government saw a permanent legal mechanism to continue the suspension.
इसको ब्रिटिश जो रूलिंग अथॉरिटी थी इसको इसलिए लाना चाहती थी क्योंकि 1914 टू 1918 के बीच में जो आंदोलन हुए थे उधर पश्चिमी यूरोप में, जिसके कारण वहाँ पर एक तरह से देखें तो वो लोग इस एक्टिविटी के थ्रू ही वो लोग जीत पाए थे। तो ऐसा इंडिया में ना हो, इसलिए डिफेंस को मजबूत करने के लिए इस लॉ को 1950 एक्ट से ही लाना चाह रहे थे वो लोग। कहता है द की रीजन्स विदाउट द रोलेट एक्ट वॉज इम्पोज्ड आर द फॉलोअर्स। और मैं बता दूं कि रोलेट एक्ट जब पास हुआ था तो हुआ क्या था कि मैं आपको बताऊं, आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस। मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि जो रोलेट एक्ट कानून था वो तो जैसे कि आपने जाना कि 1918 का जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट था उसके रीजन्स के कारण कि इंडिया डिपेंडेंटली ना हो जाए, प्रोटेस्ट ना कर दे और रिलीवेंट इतना मजबूत ना हो जाए कि अपोजिशंस एंड क्रांतिकारी कंडीशंस ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो जाए। इसके थ्रू ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे कि एक ऐसा कानून चाहते थे जो कि ज़्यादा ही इंस्ट्रिक्टेड हो इंडिया में, और वो बिना दलील, बिना वकील और बिना मुकदमा के किसी भी इंडियंस को पकड़ सकते और उसको जेल में डाल करके, डिटेनेशन सेंटर में डाल करके उसे पूछताछ कर सकते थे कि तुम्हारे साथ और कौन कौन लीगल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसा करने के लिए उसको रिस्ट्रिक्टेड और रिलेवेंट पावर चाहिए था ब्रिटिश को। तो जैसा कि इस लॉ को पास किया गया था इंडिया में 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इसे रोलेट मतलब नहीं, 6 अप्रैल नहीं, इस एक्ट को पास किया गया था इंडिया में 18 मार्च 1919 को दिल्ली में ब्रिटिश सरकार द्वारा। और इसे क्या कहा गया था, इसे काला कानून कहा गया था। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे नेशनलिस्ट, बहुत सारे क्रांतिकारी, ठीक है, बहुत सारे सोशलिस्ट के द्वारा इसे क्या कहा गया था, ब्लैक डे कहा गया था, ब्लैक एक्ट कहा गया था। क्योंकि इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि किसी भी भारतीय को 2 साल के लिए बिना वकील, बिना दलील, बिना किसी वारंट के उसे 2 साल के लिए डिटेनेशन सेंटर में बंद किया जा सकता था, ठीक है। गांधी जी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था और बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस कानून को काला कानून कहा था। 18 मार्च 1919 को यह कानून भारत में आता है। कब आता है? 18 मार्च 1919 को। और इसे जो पारित किया गया था भारत में, कहाँ पे पारित किया गया था? दिल्ली में। तो दिल्ली में जब पारित किया गया था तो वहाँ पे एक काउंसिल बनी थी, यानी कि एक बैठक हुई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्रिटिशर्स थे उसमें से कुछ इंडियन भी थे, कुछ इंडियन और कुछ ब्रिटिशर्स मिलकर के क्या बनाए थे? इस रूल को बनाए थे। JDB होज, बेसिल स्कॉट, वर्नी लॉयड, PC मीटर एंड CV कुमार स्वामी शास्त्री, ये सभी बैठे हुए थे इस काउंसिल में, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था, जो इस काउंसिल में बैठे हुए थे, ये कितने लोग बैठे हुए थे? तो यहाँ पर टोटल इस काउंसिल में 4 लोग बैठे हुए थे और इस काउंसिल के हेड कौन थे? सिडनी रोलेट। कौन थे? सर सिडनी रोलेट। बैठक हो रही है 1918 में। कब बैठक हो रही है? 1918 में बैठक हो रही है। कहाँ पे हो रही है? दिल्ली में। तो इसे लॉन्च किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू। कहाँ से लॉन्च किया गया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि उस समय में दिल्ली में था। वहाँ से इसको क्या किया गया था? इस एक्ट को लॉन्च किया गया था। लेकिन बैठक कब हुई थी? 1918 में। लॉन्च कब किया गया था? 18 मार्च 1919 को इसको क्या किया था? रोल आउट किया गया था पूरा इंडिया में, जो भी ब्रिटिशर्स स्टेट थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ था तो फिर क्या हुआ था कि इसका बहुत ज़्यादा वायलेंस आपको देखा जाएगा। कहाँ पर ज़्यादा देखा जाएगा? आपको पंजाब में। यानी कि पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था, बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट हुआ था। कहाँ पे? पंजाब में। और पंजाब में खास करके अमृतसर में। महात्मा गांधी इसी रोलेट एक्ट के कारण एक सत्याग्रह किए थे जिसका नाम है रोलेट सत्याग्रह। उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल बुलाया था और हड़ताल का आह्वान किया था। कहा था सभी भारतीयों को एकजुट हो जाओ और इस दिन हम लोग क्या करेंगे? देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इस कानून के कारण पंजाब में विशेष प्रोटेस्टेड हुआ। पंजाब में बहुत ज़्यादा मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था इस दिन। किस दिन? 6 अप्रैल 1919 को। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी भी हुई थी। डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू की गिरफ्तारी होती है। कब होती है? इसी हड़ताल के कारण।
यानी कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी रॉलेट सत्याग्रह करते हैं। सभी भारतीयों को एकजुट होकर के इस हड़ताल को सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं। और इस एक्ट में जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे वो मेन हेड लीडर के रूप में थे, ठीक है, जो पंजाब से थे। उनको क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था और अरेस्ट करके उसको डेटोनेशन सेंटर में बंद कर दिया गया था। तो जैसे ही डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर दिया जाता है तो अब क्या होता है, यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। इसके विरोध में जो पंजाब की जनता है, अमृतसर, तो बैसाखी के पर्व पर, ठीक है, बैसाखी के पर्व यानी कि बैसाखी का जो पर्व है पंजाब में ख़ास तौर पे मनाया जाता है। तो 13 अप्रैल 1919 के दिन ये लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। और ये जो जलियांवाला बाग था चारों तरफ से बाउंड्री से, लंबे लंबे बाउंड्री से घिरा हुआ था। अब यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर ही रहे थे कि इस आंदोलन का प्रोटेस्ट ही कर रहे थे कि उधर से जनरल डायर आता है और इस पर क्या करता है, अटैक कर देता है, इन निहत्थे वीर पर क्या करता है, अटैक कर देता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की क्या हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है। क्यों गिरफ्तारी हो जाती है, क्योंकि ये दोनों नेता अमृतसर में रॉलेट एक्ट यानी कि जो ये ब्लैक एक्ट आया था उसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और ये दोनों नेता हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा रूप थे उस समय में, कहाँ पर, अमृतसर में। तो इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। जैसा कि आपको बताया गया, मैंने आपको बताया कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी क्या करते हैं, रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन छेड़ देते हैं। कब, 6 अप्रैल 1919 को। तो जैसे ही 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी क्या करते हैं, छेड़ते हैं, मतलब पूरे देश को कहते हैं कि एकजुट होने के लिए। तो इसके विरोध में जो सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल थे वे लोग आगे आकर के इस नैरेटिव को एग्रेसिव कर रहे थे, ठीक है। और ख़ास करके ये लोग पंजाब के अमृतसर से थे। तो इसके कारण अंग्रेज ने क्या किया, 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिशर्स सिपाही इसको क्या करते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। जैसा कि रॉलेट एक्ट का नियम था कि बिना किसी दलील, बिना किसी वकील और बिना किसी वारंट के 2 साल का डेटोनेशन सेंटर में रखा जा सकता था। तो इसको 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिशर्स सिपाही इसको क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है, गिरफ्तार कर लेता है। और इसे पहले धर्मशाला में रखा जाता है, नहीं, पहले इसे अमृतसर में रखा जाता है और फिर कुछ दिन के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक जो जगह है, फिलहाल अभी धर्मशाला बोला जाता है उसको, हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ के एक डेटोनेशन सेंटर यानी कि जेल में बंद कर दिया जाता है। अब क्या होता है, इसकी रिहाई के लिए, ठीक है, इसकी रिहाई के लिए अब जो जनता है मांग कर रही थी कि आप जो है मेरे नेता को डिटेंशन सेंटर में जो नज़रबंद किए हो उसको छोड़ दो। इसकी रिहाई के लिए मांग उठा लेती है। अमृतसर में मैसिव प्रदर्शन होता है, प्रोटेस्ट होता है, जो बाद में हिंसक हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप ले लेता है, ठीक है। और इसी तनाव को देखते हुए शहर में क्या हो जाता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब सीधी सी बात है, जब जब जनता भड़क जाएगी और जब जनता ज़्यादा प्रोटेस्ट करेगी, जनता बहुत ज़्यादा भीड़ लगाएगी रोड पे और आंदोलन होगा, आगजनी होगा, तो कोई भी सरकार हो वो क्या करेगी, वो करेगी क्या कि वो कोई ना कोई लॉ लगा लेती है। हम लोगों ने भी देखा है कि अभी भी ऐसा होता है कि अगर किसी सिटी में या किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई मैसिव इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है तो इसके रिगार्डिंग जो गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट के जो बॉडी होती है वो क्या करती है, वहाँ पर मार्शल लॉ का यूज करती है। तो उस टाइम अंग्रेज ने भी इस आंदोलन को दबाने के लिए और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा था अमृतसर में उसको दबाने के लिए वहाँ पर क्या किया था, मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और इस मार्शल लॉ का जो कमान था किसको दिया गया था, जनरल डायर को दिया गया था। इस मार्शल लॉ का जो कमान था किसे दिया गया था, जनरल डायर, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस मार्शल लॉ का हेड जनरल डायर को बना दिया गया था। लेकिन स्टेट में जो पंजाब था, तो पंजाब का जो क्या कहते हैं उसको, राज्यपाल, अभी राज्यपाल होता है ना जैसे बिहार का राज्यपाल, उसी तरह से पंजाब का जो उस समय में राज्यपाल था वो ओ डायर था। और जनरल डायर को ये जो मार्शल लॉ था, इस मार्शल लॉ का हेड कमांडर बना दिया जाता है जनरल डायर को, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हो जाती है, ठीक है, बहुत क्रूशल हो जाता है। तो कैसा क्रूशल होता है और कैसा इवेंट हो जाता है
बहुत डार्क इवेंट होता है। हम लोगों ने उस दिन को काला दिन माना है, ब्लैक डे माना है और हमेशा मानेंगे, और इस दिन को हम लोग भूलेंगे नहीं। 13 अप्रैल 1919, जैसा कि मार्शल लॉ लागू हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का पर्व था। क्या था? पंजाब के अमृतसर में बैसाखी का पर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा था। और जैसे कि दो नेता, मैंने बताया था, दो नेता को धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में डेटोनेशन सेंटर में ले जाया जाता है और उसको वहाँ पर पूछताछ किया जाता है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को। तो इसको छुड़ाने के लिए, इसकी रिहाई के लिए बैसाखी के पर्व के दिन हज़ारों लोग अपने नेताओं यानी किचलू, डॉक्टर सत्यपाल, जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए बैसाखी के पर्व पर जो अमृतसर का जलियांवाला बाग था, वहाँ पर ये लोग एकजुट होते हैं, जमा होते हैं और शांतिपूर्ण रूप से इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच जनरल डायर को सूचना मिलती है कि हज़ारों की तादाद में जो भीड़ है जलियांवाला बाग में एकजुट होकर के क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। तो जनरल डायर बचपन से ही भारतीयों से नफ़रत करते थे, क्योंकि उसके लाइफ स्टाइल में जो स्कूली एजुकेशन थी, उसमें कई भारतीय उसको अंग्रेज होने के कारण उसको कमज़ोर, वीक कहते थे, उसको क्या कहते थे, कमज़ोर कहते थे। तुम बहुत वीक हो, तुम खेलने में कमज़ोर हो, तुम दौड़ नहीं सकते, तुम ज़्यादा पतले हो, इस तरह से उसको क्या करते थे, उसके नेम आउट करते, उसको चिढ़ाते थे। ठीक है। तो उसी दिन से वो क्या कर रहे थे, और उसकी जो बैकग्राउंड थी ना, और उसकी जो इन्वायरमेंट थी, यानी कि उसकी जो पारिवारिक वातावरण थी, वो भी भारतीयों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, खास करके उसके पिताजी, जनरल डायर के पिताजी। तो इसी का परवरिश था कि जनरल डायर भारतीयों से बहुत ज़्यादा नफरत करते, बहुत ही ज़्यादा। अगर अंग्रेज़ों में अगर कोई ज़्यादा कर सकता था, तो अगर उसमें से टॉप 20 टॉप 50 का लिस्ट हो, तो टॉप 5 में जनरल डायर का नाम जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये भारतीयों से बहुत ज़्यादा मैसिव, बहुत स्ट्रिक्टेड फील करते थे वो भारतीयों से। ठीक है, भारतीयों को देखना नहीं चाहते थे, भारतीयों को काला कहते थे और उनको हमेशा मारना चाहते थे। उसका लहू हम भारतीयों का लहू जब बहता था तो उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग आता था, उसे बहुत ही मज़ा आता था। इस तरह का क्रूजल ये थे, कौन? जनरल डायर। तो फिर क्या हुआ कि जनरल डायर ने फिर क्या किया, यहाँ पर सूचना मिलने के बाद आए, और जैसे ही आया तो उसने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, और उसने क्या किया कि 10 मिनट में अंधाधुंध फायर करने के लिए अपने सिपाही को कहा, और ख़ुद भी वो जो है एक बड़ी सी राइफल लेकर के फायर किए थे। और 10 मिनट में जो नरसंहार हुआ था, उस नरसंहार में ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। जबकि जो कांग्रेस थे, हमारे इंडिया की जो कांग्रेस एक पार्टी है, आप लोग तो जानते ही होंगे, राहुल गांधी जी उसके एक तरह से कमांड हेड लीडर हैं। तो उस समय में भी कांग्रेस थी और एक ही पार्टी थी उस समय में, कांग्रेस। तो कांग्रेस जब जांच करवाए थे, तो कांग्रेस की जांच के अनुसार 1000 से अधिक लोग क्या मरे थे, 1000 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे, मरे थे। और ब्रिटिश के डाटा के अनुसार 379 लोग ही मारे गए थे। तो अब ब्रिटिश का आंकड़ा था 379 और कांग्रेस का आंकड़ा क्या था, 1000 से अधिक। तो कुछ भी आंकड़ा कुछ भी कहे, 379 कहे या 1000 कहे, तो इतना बड़ा नरसंहार जो हुआ था, मैनवेयर हुआ था, तो इसके लिए क्या किया गया था, एक कमेटी बैठाई गई थी, और इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन? हंटर कमीशन। तो जैसे कि पूरा भारत में जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी तो हो ही गई थी, उसको डिटोनेशन सेंटर में डाला ही गया था, और उधर से महात्मा गांधी भी क्या किए थे, रोलेट सत्याग्रह कर ही दिए थे। तो मैसिव आंदोलन हो रहा था। तो 14 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन को बैठाया जाता है। हंटर कमीशन का जो बैठक है उसको क्या होता है, बैठाया जाता है। जो कमिटी थी वो जनरल डायर को कर्तव्य की गलत धारणा यानी कि मिस्टेकन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी के तहत जनरल डायर को अपराधी घोषित करती है, और जनरल डायर को उसकी पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, जनरल डायर को क्या किया जाता है, उसके पद से हटा दिया जाता है। तो लेकिन फिर क्या होता है, जनरल डायर जैसे ही इंग्लैंड जाते हैं, तो ब्रिटिश संसद में उसको, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जनरल डायर को पंजाब का रक्षक कहा जाता है, और उनके सम्मान में उसे धन जुटा करके उसे बहुत बड़ी धनराशि उसे दिया जाता है, और उसे ब्रिटिश सेना का शेर कहा जाता है, ब्रिटिश लायन कहा जाता है। तो ये हॉल घटना थी, इस जो एक्ट थी, ब्लैक एक्ट थी, जो ये रोलेट एक्ट थी, इसके बारे में आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में और क्या होंगे, आगे पढ़ते जाएंगे।
अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा तो आप हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।